So I have spoken English. I have not मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ. I have not. I have spoken English. मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ. I have not spoken English. मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ. Have I spoken English? क्या मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ? Have I not spoken English? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ? Why have I spoken English? मैं इंग्लिश क्यों बोल चुका हूँ? Who has spoken English? इंग्लिश कौन बोल चुका है? I had spoken English. मैं इंग्लिश बोल चुका था. I had not spoken English. मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका था. Had I spoken English? क्या मैं इंग्लिश बोल चुका था? और why had I spoken English? मैं इंग्लिश क्यों बोल चुका था? Who had spoken English? इंग्लिश कौन बोल चुका था? I will have spoken English. मैं इंग्लिश बोल चुका हूँगा. I will not have spoken English. मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँगा. Will I have spoken English? क्या मैं इंग्लिश बोल चुका हूँगा? Why will I have spoken English? मैं इंग्लिश क्यों बोल चुका हूँगा? Who will have spoken English? इंग्लिश कौन बोल चुका होगा? So next one. I have been speaking English. For how long you've been attending the class here in persona? Sir, for 3.5. 3.5 months you have done. So in English you can say that I've been attending class for 3.5 months. मैं 3.5 महीने से class attend कर रहा हूँ. I've not been attending class for 3.5 months. You know, try to speak a practical sentence. Yes, sir. You know? I have been attending personal class, sir. I have been attending class for 3.5 months. I have been not attending the classes for 3.5 months. Have I been attending classes for 3.5 months? Why have I been attending the classes 3.5 months? I had been attending the classes for 3.5 months. सही हिंदी में बोलूँ क्या उसको? Yeah, you can use the Hindi. मैं 3.5 महीने से इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर रहा था. जैसे हिंदी को उसी के साथ बोला करो, अलग से मत बोलो. आगे बढ़ जाओ. Okay, sir. I had been attending the classes for 3.5 months. I had not been attending the class 3.5 months. Had I been attending the class 3.5 months? Why had I been attending the class 3.5 months? Who had been attending the class 3.5 months? I will have been attending the class 3.5 months. I will not have been attending the class 3.5 months. Will I have been attending the class 3.5 months? Why will I have been attending the class 3.5 months? Who will attending the class 3.5 months? ठीक है. मैं पढ़ा रहा हूँ. I'm teaching. मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ. I have been teaching since morning. मैं पढ़ाता हूँ. I teach. मैं टॉपिक 2 बार पढ़ा चुका हूँ. I have taught this topic 2 times. I have taught this topic 2 times. मैं वहाँ जाता हूँ. I go there. मैं यहाँ आता हूँ. I come here. मैं यहाँ आ सकता हूँ. I can come here. Okay, मैं यहाँ पर हूँ. I'm here. मैं सुबह से यहाँ पर हूँ. I have been here since morning. मैं सुबह से वहाँ पर हूँ. I have been there since morning. मैं वहाँ था. I was there. मैं वहाँ नहीं था. I was not there. I was not there. Okay, मैं 2 दिन से स्कूल में था. I had been in school since for 2 days. I had been in school for 2 days. चलिए, very good dear. बहुत अच्छा. Okay, now everyone. So 6 stanzas. सभी लोग बोल सकते हैं? Yes, sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? गलती से बटन क्लिक हो गया. कौन सा बटन भाई? चलिए आज सुनते हैं हम सुदान को. सुदान जी स्वागत है आपका. सुदान जी, you have to speak the 6 stanzas. Yes, on the board. The structures you can see. Please speak. और ये बार बोलना है. मैं चाहता हूं कि आप एक टाइम पीरियड बनाएं कि इतने कम समय में, जैसे आपने टारगेट लिया कि मुझे 2 मिनट के अंदर पूरे 12 टेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH और हु पैटर्न में बोलना है. तो 2 मिनट का एक टाइमर सेट करूं. ठीक है, जैसे मान लीजिए टाइमर सेट किया हमने 2 मिनट का. देखते हैं आप 2 मिनट में बोल पाते कि नहीं, है ना? शुरू करिए. टाइमर स्टार्ट है आपका. I teach English. I taught English. I will teach English. I am teaching English. I was teaching English. I will be teaching English. I have taught English. I had taught English. I will have taught English. I have been teaching English for 2 years. I had been teaching English for 2 years. I will have been teaching English for 2 years. ट्रैक से भटक गए हो. देखो क्या करना है. मैं I teach English. I don't teach English. Do I teach English? Why do I teach English? Who taught English? Okay. I taught English. I did not teach English. Did I teach English? Why did I teach English? Who taught English? I will teach English. I will not teach English. Will I teach English? Why will I teach English? Who will teach English? I am teaching English. I am not teaching English. Am I teaching English? Why am I teaching English? Who is teaching English? I was teaching English. I was not teaching English. Was I teaching English? Why was I teaching English? Who was teaching? This is the way to speak. Okay, with accuracy, we have to speak. Got it? Yes, sir. चलिए फिर से स्टार्ट करें एक बार. Yes, sir.
सुदान जी पहले प्रेजेंट सिंपल, फिर पास्ट सिंपल, फिर फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे बोलना है. कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. 1 2 3 स्टार्ट. I teach English. I taught English. I will teach English. I don't teach English. I did not teach English. I will not teach English. I am teaching English. I was teaching English. I will be teaching English. I'm not teaching English. I was not teaching English. I will not be teaching English. Do I teach English? Did I teach English? Will I teach English? Am I teaching? Was I teaching? Will I teach English? Have I taught English? Had I taught English? Will I have taught English? Have I been teaching English for 2 years? Had I been teaching English for 2 years? Will I have been teaching English for 2 years? Who teach English? Who taught English? Who will देखो teach आपने English? ना, देखो आप क्या बोल रहे हो? डू आई टीच इंग्लिश, डिड आई टीच इंग्लिश, विल आई टीच इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश, वाज आई टीचिंग इंग्लिश. आप क्या कर रहे हो? पहले पूरे अफर्मेटिव, फिर पूरे नेगेटिव, फिर पूरे इंटरगेटिव. बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बीच में एक पूरा सेंटेंस खा गए. ये बोलने के बाद आप डायरेक्ट किसको बोल रहे हो? हु वाले को. डब्ल्यूएच आपका मिस हो गया. इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जब तक एक पैटर्न नहीं बनाओगे, पहले हमें इजी वे में बोलना है. इजी वे क्या है? पहले सारे प्रेजेंट सिंपल बोल दो, फिर सारे पास्ट सिंपल बोल दो, फिर सारे फ्यूचर सिंपल बोल दो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Okay, sir. Okay, sir. आपने लास्ट टाइम भी ओके बोला था, फिर वही गलती करी. चलो कोई नहीं. सो एक बार वंस अगेन फिर से तैयार है आप? Yes, sir. क्या करना है पहले तो बताइए. पहले जो प्रेजेंट के दिए है ना वो बोलने, फिर पास्ट के बोलने, फिर फ्यूचर के बोलने, फिर प्रेजेंट के, पास्ट के और क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो ना वो भी सही है, लेकिन उसमें फिर आपको उतना अटेंशन भी देना है. अभी मैं आपको इजी वे सिखा रहा हूँ कि आप अगर स्टूडेंट को पढ़ाओ तो पहले ये टेक्निक से पढ़ाना. इससे क्या होगा, वो कन्वीनियंटली बोल पाएगा. नहीं तो होगा क्या कि जैसे आपने अभी क्या खुद ने आपने देखा होगा ना कि आप डू डज बोला, आपने डिड बोला, बिल्कुल सही बोला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका डब्ल्यू छोड़ के आप डायरेक्ट हु पैटर्न पे आ गए. तो इस बीच में क्या होता है, सेंटेंस छूट जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कहां छोड़ दिया. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन. चलिए अभी आप स्टार्ट करिए, देखते हैं आप कैसा बोलते हैं. स्टार्ट. I teach English. I don't teach English. Do I teach English? Why do I teach English? Who teach English? Okay. Who taught English? Who did not teach English? Who will teach English? एक मिनट, फिर वही गलती. आई टॉट इंग्लिश. हाँ. Yes, sir. I taught English. I did not teach English. Did I teach English? Why did I teach English? Who teach English? हु टॉट इंग्लिश. Who taught English? हाँ, मैं आपको तुरंत करेक्ट करूंगा. नेक्स्ट. I will teach English. I will not teach English. Will I teach English? Who will teach English? Why Why will I teach English? I teach English. Who will teach English? हाँ, next. Who is teaching English? I am Who- teaching English. Why I am teaching English? I am teaching English. Affirmative. I am teaching English. I am not teaching English. हाँ. Why I am teaching English? Am I teaching English? Am I teaching English? Why am I teaching English? Who is teaching English? Next. English. Who was? I was. I was teaching English. I was not teaching English. Was I teaching English? Why was I teaching English? Who was teaching English? I will be teaching English. I will not be teaching English. Will I teaching English? Why will I be Will teaching I be English? teaching English? Who will be teaching English? Why will I be teaching English? Who will be teaching English? Why? Yes, sir. चलिए. Next. I have taught English. ओके, 2 मिनट में आप 6 टेंस बोले हमने, कोई नहीं. अगला. I have taught English. I have not taught English. Have I taught English? Why have I taught English? हाँ. Who have taught Who has English? taught English? Who has taught English? Next. Has taught English. Who had taught English? Who had not taught English?
एक मिनट यार, आप है ना फिर वही गलती करते हो। आप क्या करते हो पता है? हु हैज टॉट इंग्लिश, अब ये खत्म हो गया, अब इसके बाद यहां से शुरू करना, आप यहां से कर देते हो। Yes, sorry. ये हर बार कर रहे हो आप ये गलती। I had taught English. I had not taught English. Had I taught English? Why had I taught English? Who had taught English? ओके, I will have taught English. I will not have taught English. Will I have taught English? Why will I have taught English? Who will have taught English? ओके, नेक्स्ट। I have been teaching English for 2 years. I have not been teaching English for 2 years. Have I been teaching English for 2 years? हाँ, Why have I been teaching English for 2 years? And who has been teaching English for 2 years? has been teaching English for 2 years? आप सुनिए, आप क्या नाम है आपका? सुदान जी। Sudam Papa. हाँ, पूरे सेंटेंस जितने भी है ना 12 टेंस के पांचों में लिखी है और उनको कम से कम 20 से 30 बार पढ़ी है। 20 to 30 टाइम पढ़ के हमें टारगेट रखना है कि टाइमर हमारा सेट करना है, कितने मिनट में बोलना है हमें? 2। कैसे? शी गोज टू स्कूल, स्कूल जाती। शी डज नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाती। डज शी गो टू स्कूल, क्या स्कूल जाती? व्हाई डज शी गो टू स्कूल, स्कूल क्यों जाती? हु गोज टू स्कूल, कौन स्कूल जाती है? शी वेंट टू स्कूल, स्कूल गई। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गई। डिड शी गो टू स्कूल, क्या स्कूल गई? व्हाई डिड शी गो टू स्कूल, स्कूल क्यों गई? हु वेंट टू स्कूल, कौन स्कूल गई? शी विल गो टू स्कूल, स्कूल जाएगी। शी विल नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाएगी। विल शी गो टू स्कूल, क्या स्कूल जाएगी? व्हाई विल शी गो टू स्कूल, स्कूल क्यों जाएगी? हु विल गो टू स्कूल, कौन स्कूल जाएगी? शी इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रही है। शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रही। शी गोइंग टू स्कूल, क्या स्कूल जा रही है? व्हाई शी गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्यों जा रही है? हु इज गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है? शी वाज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रही थी। शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रही थी। वाज शी गोइंग टू स्कूल, क्या स्कूल जा रही थी? व्हाई वाज शी गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्यों जा रही थी? एंड हु वाज गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रही थी? शी विल बी गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रही है। शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रही है। विल शी बी गोइंग टू स्कूल, क्या स्कूल जा रही है? व्हाई विल शी बी गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्यों जा रही है? हु विल बी गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रही होगी? शी हैज गॉन टू स्कूल, स्कूल जा चुकी है। शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, स्कूल नहीं जा चुकी है। शी गॉन टू स्कूल, क्या स्कूल जा चुकी है? व्हाई शी गॉन टू स्कूल, स्कूल क्यों जा चुकी है? एंड हु हैज गॉन टू स्कूल, कौन स्कूल जा चुकी है? शी हैड गॉन टू स्कूल, स्कूल जा चुकी। शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, स्कूल नहीं जा चुकी थी। हैड शी गॉन टू स्कूल, क्या स्कूल जा चुकी थी? व्हाई हैड शी गॉन टू स्कूल, स्कूल क्यों जा चुकी थी? एंड हु हैड गॉन टू स्कूल, कौन स्कूल जा चुकी थी? शी विल हैव गॉन टू स्कूल, स्कूल जा चुकी होगी। शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, स्कूल नहीं जा चुकी होगी। विल शी हैव गॉन टू स्कूल, क्या स्कूल जा चुकी होगी? व्हाई विल शी बी हैव गॉन टू स्कूल, स्कूल क्यों जा चुकी होगी? एंड हु विल हैव गॉन टू स्कूल, कौन स्कूल जा चुकी होगी? शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल जा रही है। शी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। हैज शी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, क्या वो 2 दिन से स्कूल जा रही है? व्हाई हैज शी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल क्यों जा रही है? एंड हु हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, कौन 2 दिन से स्कूल जा रहा है? शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल जा रही है। शी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। हैड शी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, क्या वो 2 दिन से स्कूल जा रही थी? व्हाई हैड शी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल क्यों जा रही थी? एंड हु हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, कौन 2 दिन से स्कूल जा रहा था? शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल जा रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही होगी। विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, क्या वो 2 दिन से स्कूल जा रही होगी? व्हाई विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल क्यों जा रही होगी? एंड हु विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, कौन 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा? सो एक टाइमर आप सेट करेंगे कि 2 मिनट के टाइमर में आपको पहले इंग्लिश में बोलना है। जैसे मैंने तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला, आपको मैंने जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला है। आपको सिर्फ किस में बोलना है? ओनली इन इंग्लिश यू हैव टू स्पीक इनिशियली, ठीक है? हाँ, उसके बाद फिर जब आपकी स्पीड अच्छी बन जाए तो उसमें हिंदी भी एड ऑन कर देना। समझ में आ रहा नहीं है ना? तो एक टारगेट टाइमर सेट करो मोबाइल में कि भाई 2 मिनट के अंदर मुझे इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर बोलना है, मतलब बोलना है विद एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि फिर फटाफट बोलने के चक्कर में खूब सारी गलती का ढेर लगा, ये भी नहीं होना चाहिए। कुछ आई बात समझ में? इनिशियली हम सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे एंड वंस वी आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, एक बार जहां हमको इंग्लिश में आ गया देन एड ऑन द हिंदी इन दैट। कुछ आई बात समझ? ये क्यों करना है बताऊं? टू मेक अवर टंग फ्लेक्सिबल। इससे इंग्लिश नहीं सीखोगे बट इससे हमारी टंग में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंग्लिश को बोलने की। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चीजें को हम रिप्लाई कर पाएंगे, अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। साथ साथ हमको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि जैसे आपने कभी देखा होगा ना, समटाइम्स सम सेंटेंसेस, सम वर्ड्स इन इंग्लिश वी आर अनएबल टू स्पीक करेक्टली। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज़ वी आर नॉट हैबिचुअल टू स्पीक, हमको आदत नहीं बोलने की। और जब हम बोलेंगे, टाइमर सेट करेंगे और उसके बाद में बैक टू बैक रिवाइज करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो टंग हमारी क्या होगी? शार्प होगी। क्या होगी? शार्प होगी। जो टंग ट्विस्टर है उसकी तरह काम करेगा ये। कुछ आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ, इसकी मदद से आप जो है कहीं ना कहीं समाओ चीजों को समझ पाओगे, चीजों को कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। चलो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधान जी। आपने समझ लिया क्या करना है हमें? Yes, sir. जी, चलिए सुधा मैम को सुनते हैं। सुधा प्रसाद। सुधा मैम, कैन यू स्पीक? यस, 12 टेंसेस बोल सकते हैं, आपको लगता है? Yes, sir. Yes, sir. Can you speak? Good afternoon.
हाँ जी. Okay, sir. I sing. No, sorry. He sings a song. He doesn't sing a song. Does he sing a song? Why does he sing a song? Who sings a song? He sang a song. He didn't sing a song. Did he sing a song? Why did he sing a song? Who sang a song? He will sing a song. He won't sing a song. Will he sing a song? Why will he sing a song? Who will sing a song? He is singing a song. He is not singing a song. Is he singing a song? Why is he singing a song? Who is singing a song? He was singing a song. He was not singing a song. Was he singing a song? Why was he singing a song? Who was singing a song? Okay. He has been singing a song for 2 years. He has not been singing a song for 2 years. एक सेकंड. He was के Yes. बाद आपको he will be बोलना है ना. Oh, okay. हाँ, आप डायरेक्ट एंडिंग पे जा रहे थे उसके. हाँ. He will be singing a song. हाँ. Okay. He will be singing a song. He will not be singing a song. Will he be singing a song? Why will he be? Why will he be singing a song? Huh. Who will be singing a song? Excellent. Good job. Okay. Next. Now, which one? So From perfect tense. Present perfect. perfect. Yeah. Okay. Okay. He has sang a song. Sang a song. He has sung a song. He has not He sung a had song. been. He has sang a song. Sorry, where is? देखिए, he has sung a song. वो गाना गा चुका है. Yes, sir. He Yes, has sir. not Yes, sung a sir. song. वो गाना नहीं गा Yes, चुका sir. है. Yes, sir. I will do. Has he sang a song? हाँ, वो गाना गा चुका है. Why has he sang a song? Who has sang a song? Why has he sung a song? वो गाना क्यों गा चुका है? Yeah. And the last. Who has sang a song? हाँ, कौन गाना गा चुका है? Yes. चलिए next. He had sang a song. He hadn't sang a song. Had he sang a song? Why had he sang a song? Who Okay. had sang a song? He Who had will sung a have song? कौन गाना गा चुका है? गा Okay, चुका है, fine. yes. Next. He will have sang a song. He will not have sang a song. Will he have sang a song? Why will he have sang a song? Who will have sang a song? Okay, Yes, very sir. good. Next. He has been singing a song for 2 years. He has not been singing a song for 2 years. He has not been singing a song for 2 years. Has he been singing a song for 2 years? Why has he been singing a song for 2 years? Who has been singing a song for 2 years? Who has been singing a song for 2 years? Very good. Next. Yeah. He had been singing a song for 2 years. He had not been singing a song for 2 years. Had he been singing a song for 2 years? Why had he been singing a song for 2 years? Who had been singing a song for 2 years? He will have been singing a song for 2 years. He will not have been singing a song for 2 years. Will he have been singing a song for 2 years? Why will he have been singing a song for 2 years? Who will have singing a song for 2 years? चलिए, very good. सुधा मैम, आपने बहुत अच्छा बोला, बस बीच में थोड़ा सा आप डिरेल हो गए थे. Yes, That's okay, it was fine. Okay, Okay. we appreciate your efforts that you tried well. What you need to do right now is to practice them back to back so that your Yeah. tongue it get habitual and अच्छा है वो. और can you add on Hindi over here? Where are you from? I'm from Ranchi, Jharkhand Ranchi. capital. Oh, Ranchi, Yeah. Jharkhand. Yeah, Jharkhand's capital. Fine. So I think Hindi is spoken there, right? Yeah. So in Hindi you can translate. जैसे जो उड़िया से स्टूडेंट है उनको उड़िया में करना है, जो महाराष्ट्र से है उनको मराठी में करना है. Yes, ठीक है. sir. हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज में इसलिए करना है ताकि अगर हम हमारे लोकल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, है ना, Yeah. तो वी कैन कन्वीनियंटली एंड इजीली टीच देम कि भाई इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं ना. Okay, sir.
चलिए, ये हमें जरूर पता होना चाहिए उसकी हमारी नेटिव लैंग्वेज में उसका मीनिंग, ताकि हम लोग अच्छे से कर पाए। ओके चलो भाई, अब थोड़ा मैं आगे लेकर चल रहा हूं, समय हो रहा है हमारे पास, लास्ट के 30 मिनट्स और बचे हैं। देखो सबसे पहले तो 12 टेंस, कितने टेंस दिया? क्या सारे स्टूडेंट को समझ में आए? ओके, हमने इसके क्या क्या बनाए? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, इन सेंटेंसेस को एक कॉपी और पेन लेकर मैनुअली हम लोगों को क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? यस, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, जितना बना सकते हो उतना बनाओ, ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, व्हाई डज शी स्पीक इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पोक इंग्लिश, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसा मल्टीपल टाइम जितना बोल सकते हो उतना बोलो। यू गॉट इट? आप जितना बोलोगे उतना ज्यादा आपकी टंग जो है वो फ्लेक्सिबल बनेगी, उतना ज्यादा आपको हैबिट में आओगे, उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। गेटिंग? समझ गए? चलो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूं कल वाला जो WH वर्ड्स हम लोग कर रहे थे उसको आगे ले चलते हैं। कल मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए थे, तो क्या आपने बनाया सभी ने? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा बनाए, थोड़ा नहीं बनाए? अच्छा 2 दिन का समय दिया था। हाँ यार हम तो भूल ही गए। हाँ ठीक है ना, आज थोड़ी कल पूछेंगे ना। हाँ ठीक है ओके, कल डिस्कस करेंगे यार, हम भूल गए थे। चलिए, हमने एक तो व्हाट देखा था। अच्छा, व्हाट को हमने अलग अलग सेंस में देखा था। एक व्हाट के साथ हमने नाउन भी लगाया था, याद है? हाँ, वो भी देखा था हमने। फिर हमने व्हाट से बनने वाला क्या देखा था? फॉर व्हाट, ठीक है। फिर हमने और क्या देखा था? अच्छा, व्हाट ऑल देखा था। और क्या देखा था हमने? व्हाट एल्स, फाइन। और क्या देखा था हमने? हाँ हाँ, नहीं, व्हाट काइंड ऑफ देखा था ना अभी। ये तीनों एक ही है एक्चुअल में, है ना? ये जो तीनों हैं, इनका तीनों का एक ही मीनिंग हमने देखा था, ठीक है। तो व्हाट के बाद में आपका नाउन है ना, व्हाट फॉर व्हाट ऑल, व्हाट एल्स, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ। तो ये इतने सारे हमने कल देखे थे, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही हम लोग अगला लेते हैं, वाई, जो हम सबको आता है। इसका उपयोग किसके लिए होता है? रीजन के लिए। किसके लिए होता है? रीजन के लिए। जब भी आप किसी चीज के लिए कोई रीजन जानना चाहोगे तो आपको किसका उपयोग करना है? वाई का। ये सिमिलर है किसका? फॉरवर्ड का। किसका? मतलब जो मीनिंग वाई देता है वही मीनिंग क्या देता है? फॉरवर्ड देता है। जैसे मैंने कहा आप यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हियर। सिमिलरली यू कैन आस्क फॉर व्हाट आर यू हियर, फॉर व्हाट आर यू हियर। तो आप कहोगे आई एम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्या कहोगे? आई एम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। हाँ, तो आज मैं आपको एक्चुअल में ये तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ में आपको प्रैक्टिकली रिप्लाई कैसे करना है वो चीज भी हम अभी देखेंगे। देखो, व्हाट प्लस एडजेक्टिव आप अगर बनाओगे, मैंने कहा व्हाट ब्यूटीफुल, ऐसा होता है क्या? व्हाट प्लस एडजेक्टिव नहीं करते हम, व्हाट हाउ प्लस एडजेक्टिव करते हैं। क्या करते हैं? ये आगे सिखाएंगे आपको अभी हाउ में। हाउ प्लस एडजेक्टिव होता है, व्हाट प्लस एडजेक्टिव नहीं करते। व्हाट प्लस नाउन करते हैं, ठीक है। और व्हाट प्लस नाउन फ्रेजेस भी होता है। व्हाट प्लस नाउन फ्रेजेस होता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। किसमें होता है? हाँ, व्हाट प्लस नाउन फ्रेजेस हो जाएगा। कैसे? देखो, मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। आपने एक बगीचा देखा, गार्डन देखा, और उसको देखकर आप खुश हो गए, तो आप क्या कहो? व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना सुंदर बगीचा है। तो ये जो व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये आपका नाउन फ्रेज है। ये क्या है? तो आप व्हाट के साथ ये यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन दिस इज, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी। दिस इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। आप इसको अगर ये मान के चलेंगे भाई व्हाट लगा है तो इंटरोगेटिव होगा, नो, दिस इज नॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या होता है? हाँ, ये फर्स्ट क्लास में आपको याद है, पहले दिन हमने वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस किया था। असर्टिव, याद है? इंपेरेटिव और असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब आश्चर्यबोधक वाक्य। कैसे वाक्य?
ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं हम इसको। चलिए, तो अगला देखो, अगला WH वर्ड हमारा क्या है? वाई। क्या है? वाई, क्यों। मैंने कहा आप वहां क्यों हो? वाई आर यू देयर, आप यहां क्यों हो? आप वहां क्यों जा रहे हो? एक्यूरेसी मेंटेन करना है, एक एक सेंटेंस 100% करेक्ट। अब आप क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? वाई आर यू सिटिंग हियर, बैठे हुए हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है ना। अब आप बाहर क्यों खड़े हुए हो? वाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हुए हो? वाई आर यू स्टैंडिंग एट द डोर, आप वहां क्यों जा रहे हो? आप उससे बात क्यों कर रहे हो? वाई आर यू टॉकिंग टू हिम, वाई आर यू टॉकिंग टू हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। ओके, आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो? वाई आर यू हेल्पिंग हिम, आप क्यों लिख रहे हो? वाई आर यू राइटिंग, आप क्यों पढ़ा रहे हो? वाई आर यू टीचिंग, आप क्यों पढ़ाते हो? वाई डू यू टीच, आप कैसे पढ़ाते हो? सो दिस इज वाई। समझ गए आप लोग? पक्का? ओके, इसका उपयोग जो होता है रीजन के लिए होता है। किसके लिए होता है? रीजन। हर एक चीज के पीछे कोई रीजन होता है, तो रीजन जानने के लिए आप किसका उपयोग करते हो? किसका? वाई का। ठीक है, चलो अगला है आपका वैन। अगला क्या है? वैन मतलब कब। इसका उपयोग जब भी होता है वो आगे देखेंगे। समझ में आ रहा नहीं है? अब देखो, यहां पर आप ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट। मैंने कहा आप सुबह कब उठते हो? When do you wake up in the morning? आप कॉलेज कब जाते हो? आप स्कूल कब जाते हो? आप यहाँ कब आते हो? आप इंग्लिश कब पढ़ाते हो? When do you teach English? आप कब लिखते हो? आप कब बोलते हो? आप कब सुनते हो? When do you listen? आप कब समझाते हो? When do you explain? आप यहाँ कब आते हो? आप उसकी मदद कब करते हो? आप मेरी हेल्प कब करते हो? When do you help me? आप कब लिखते हो? आप कब समझाते हो? When do you explain? So this is the way to explain. कौन में आ रहा नहीं है? When. Why हो गया, when हो गया, where. अच्छा, when में क्या बताते हो आप? टाइम। where मतलब कहाँ। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? प्लेस। ठीक है, मैंने कहा आप कहाँ हो? वेर आर यू, आप कहाँ रहते हो? ओके, आप पढ़ाई कहाँ कर रहे हो? आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो? वेर आर यू लर्निंग इंग्लिश। इसका उपयोग किसके लिए होता है? प्लेस के लिए। इसी के आगे आप लगा दो फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो भाई? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। ठीक है, कहाँ से आ रहे हो? मैं इंदौर से आ रहा हूँ। वेरी गुड। और ऐसे मैंने पूछा कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वेयर टू वेयर। ये दो के लिए, दो स्थान के लिए होता है, कहाँ से कहाँ तक। जैसे मैंने कहा ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है, चलती है? From where to where does this train runs? From where to where does this train run? Okay, तो आपने कहा ये ट्रेन इंदौर से भोपाल जाती है। This train runs from इंदौर to भोपाल। From एक वेयर की जगह इंदौर आ जाएगा, टू के बाद में दूसरे वेयर की जगह भोपाल आ जाएगा। You got it? लेकिन फ्रॉम और टू वहीं लगे रहेंगे। गेटिंग? दूसरी बात याद रखना, फ्रॉम के साथ क्या लगता है हमेशा? अगर मैं बिटवीन लगा दूंगा, बिटवीन वेयर एंड वेयर, तो क्या लगेगा फिर? मैंने कहा ये ट्रेन किस जगह से किस जगह के बीच में चलती है। सो बिटवीन वेयर एंड वेयर डज दिस ट्रेन रन। तो आप बोलोगे दिस ट्रेन रन्स बिटवीन इंदौर एंड भोपाल। यू गॉट इट? मतलब हमने अगर फ्रॉम लगाया तो हमें क्या लगाना है? टू। हमने बिटवीन लगाया तो हमें क्या लगाना है? एंड। ठीक है, इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना। यस, एनीबॉडी देयर हु इज? यार क्या इंक्वायरी के लिए आए? किसके हिसाब से है? ऑफिस में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? चलो बेटा 5 मिनट आते हैं। चलो वैसे टाइम भी हो रहा है ना अपना।
चलो अभी देखो, बिटवीन वेयर एंड वेयर, ये आया समझ में नहीं आया? बिटवीन वेयर एंड वेयर का मतलब क्या होता है? किस जगह से, मतलब कहां से कहां के बीच में। आप ऐसा भी कर सकते हो, सबसे बेस्ट, कहां से कहां के बीच में। चलो अभी मुझे बताओ, ये आया समझ में सारे? कहीं कोई डाउट है? ओके, मैंने कहा वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there? आप कब आते हो? आप इंग्लिश कब सीखते हो? आप सुबह कब उठते हो? ओके, आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो? ओके, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? आप दूसरों की मदद क्यों करते हो? Why do you help others? चलो ठीक है, अब ये बताओ मुझे, कितने स्टूडेंट्स को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई? सच्ची मुझे? पक्का पक्का? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेयर टू वेयर डू दिस ट्रेन गोज, नहीं ये गलत है श्वेता जी, फ्रॉम वेयर टू वेयर डज दिस ट्रेन लिखना है आपको, ठीक है ना? बुक का पीडीएफ है सबके पास? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कब से कब तक? अब जैसे आप बोलते हो कि मैं 9 से 10 तक पढ़ाता हूँ, तो आप क्या बोलते हो? फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock। तो हमें उसी में से, फ्रॉम में से जहां टाइम लिखा हुआ क्या लग दो? व्हेन। तो हम क्या बना देंगे? फ्रॉम व्हेन टू व्हेन डू यू टीच, ठीक है? और अगर मैंने कहा कि आप कौन से टाइम के बीच में पढ़ाते हो, सो बिटवीन व्हाट टाइम एंड व्हाट टाइम, या बिटवीन व्हेन एंड व्हेन डू यू टीच, है ना? मतलब मैं ये चाहता हूं कि WH वर्ड हम खुद से बनाना सीखें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हमको जो है ऑटोमेटिक चीजें समझ में। देखिए, हमने पार्ट 1 हाउ टू आस्क क्वेश्चंस का देख लिया था, पार्ट 2 वाला देखेंगे अपन 92। देखो ये वाला आपको पढ़ना है, अभी इसके आंसर मत लिखना, सिर्फ इसको पढ़ना बस। अभी क्या करोगे? जस्ट रीड करना है, रीड करके इसको आंसर करना है, लेकिन लिखना नहीं है, सॉरी अभी लिखना नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ना और इसको आंसर करना। देखिए कैसे, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? एक लाइन में आंसर करो, मेरी प्रॉब्लम है इंग्लिश। बोलो, माई प्रॉब्लम इज इंग्लिश। अभी एक लाइन में किया, और बड़ा करना है तो आप लिख सकते हो माई प्रॉब्लम इज इंग्लिश बिकॉज आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, या आप कह सकते हो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट आई हैव सम प्रॉब्लम इन स्पीकिंग। ऐसा जरूरी नहीं कि माई प्रॉब्लम से आप आंसर को स्टार्ट करें, यू कैन स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम एनीवेयर, बट रिमेंबर वन थिंग, योर आंसर मस्ट बी रिलेट विथ योर क्वेश्चन। यू गॉट इट? आपका आंसर आपके क्वेश्चन से क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, नहीं तो पता लगे आंसर आपका कहीं और जा रहा है, क्वेश्चन आपका कहीं और जा रहा है, चीजें क्या हो रही है? हाँ, गड़बड़ हो रही है, ये नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऐसे मैंने कहा व्हाट डज ही लाइक, वो क्या पसंद करता है, तो आपने कहा वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है, he likes to play cricket। अभी एक एक लाइन में आंसर करना है, ठीक है? he likes to play hockey, he likes to watch TV। next, what are you telling? मैं क्या बोल रहा हूं? तो आई एम टेलिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी सुना रहा हूं, मैं एक कहानी सुना रहा हूं। नेक्स्ट, व्हाट हैव वी टोल्ड हिम, हम उसे क्या कह चुके हैं? वी हैव टोल्ड हिम टू गो देयर, हम उसे वहां जाने का कह चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? बोलो, द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 5 months। जैसे देखो, ये व्हाट की जगह हम क्या लिख देंगे? ऐसा भी लिख देंगे, 5 months इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, या फिर हम क्या बोल देंगे? द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 5 months। कुछ आया समझ में? नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो? बोलो,
I want to become a teacher. I want to become an effective teacher. है ना? How long will I take to go there? वहां जाने में कितना समय लगेगा? It will take 10 minutes to go there. आपने कहा वहां जाने में 10 मिनट लगेंगे तो क्या बोलोगे? It will take 10 minutes to go there. यहाँ आने में 10 मिनट लगेंगे तो It will take 10 minutes to come. Without पक्का लॉक कर दे. चलो तो ये आपको सभी को इसके आंसर जो है पढ़ के आना है. दूसरा वर्क जो हमने कल आपको व्हाट के सेंटेंसेस बनाने के दिए थे वो बनाना है. तीसरा उसके अंदर 10-10 15-15 सेंटेंस जो आज हमने पढ़ाया ना इसके बना लेना. किसके? हाँ, वाई के, व्हेन के, वेयर के, फ्रॉम वेयर और ये भी. गेटिंग कल सैटरडे छुट्टी नहीं है, कल भी क्लास है क्योंकि बीच में एक छुट्टी मिल गई थी परसों, है ना? तो कल हमने छुट्टी नहीं रखी, कल सैटरडे क्लास रखा है हमने. आज फ्राइडे ना, कल सैटरडे ऑफ नहीं है, कल क्लास रहेगा. चलो आज की क्लास को ये वाइंड अप कर रहे हैं. इट इज इनफ फॉर टुडे एवरीवन. कल मिलते हैं हम लोग. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेयर टू वेयर क्या पूछा है? इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव नहीं होता? एन इफेक्टिव टीचर, प्रभावशाली टीचर. चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी ग्रुप में सारा का सारा कंटेंट जो हमने किया है पूरा बना के भेजेंगे, ठीक है ना? चलो क्लास को हम यही आज वाइंड अप कर रहे हैं.